দুখন দেশৰ দুজন নেতাই একেদিনাই জয়লাভ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। পাকিস্তানৰ নেতা ইমৰান খানে যিটো সময়ত পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত জয়লাভ কৰিছে, সেইটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভাৰতবৰ্ষৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত জয়লাভ কৰিছে। দুয়ে জয়লাভ কৰিছে দুটা বিশেষ বিষয়ত। এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানত গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, ইমৰান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু ইমৰান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰক অবৈধ ঘোষণা কৰিলে পাকিস্তানৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে। লগে লগে আছিল এয়া ইমৰান খানৰ বাবে জয়, ইমৰান খানৰ সমৰ্থনকাৰীৰ বাবে জয়। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত জয়লাভ কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টক বাৰে বাৰে কৈ আহিছিল যে প্ৰশাসনীয় ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ, প্ৰশাসনীয় ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম কৰিবৰ বাবে বাৰে বাৰে কৈ অহাৰ পিছত এইবাৰ জয়লাভ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। লৈ আহিছো সবিস্তাৰে এই খবৰ। কেজৰিৱালৰ হাতত হ'ল পৰাস্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক পৰাস্ত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। দিল্লী চলোৱাৰ যুঁজত কেজৰিৱালে পালে বৃহৎ সফলতা, কাৰণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ক্ষেত্ৰখনত এতিয়া সফলতা লাভ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে। এতিয়াৰে পৰা দিল্লীৰ প্ৰশাসনত উপ ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ কিছু সীমিত হ'ব। প্ৰশাসনীয় ক্ষেত্ৰখনত এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অন্য ৰাজ্যসমূহৰ দৰেই চলাব পাৰিব। দিল্লীৰ প্ৰশাসন চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মাজত এক বিবাদ হৈছিল। মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠে ৰায় প্ৰদান কৰে, আইন শৃংখলা আৰু ভূমিৰ বাহিৰে সকলো বিষয়তে দিল্লী চৰকাৰৰ এতিয়া থাকিব ক্ষমতা। গণতান্ত্ৰিক গাঁথনিত প্ৰকৃত প্ৰশাসনিক ক্ষমতা অৱশ্যে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ হাতত থাকিব লাগিব। ইফালে কালি পাকিস্তানত ইমৰান খানক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছিল ইছলামাবাদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভয়ংকৰ পৰিৱেশ। দেশখনৰ বহু প্ৰান্তলৈ বিয়পি পৰিছিল হিংসাৰ দাবানল। এক প্ৰকাৰে গৃহযুদ্ধই আৰম্ভ হৈ গৈছিল। অৱশেষত ইমৰান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰক অবৈধ আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে, এই ৰায় দিয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশখনত আনন্দৰ জোৱাৰ হৈছে। এফালে ইমৰান খানক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ জনতা, আনফালে দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জয়ক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সমৰ্থনকাৰীসকল। আমাৰ ওচৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে, কিছু মন্তব্য আমি শুনাই লৈছো। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो LG के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, IAS अफसर से क्लास A से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे
तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा आज के आदेश के बाद। बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रेस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रेस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रेस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रेस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये हम चाहते हैं। जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट